Hello students, today's video is for the students of class 11th Arts Humanities. Generally there is a trend that the students who are going for opting for science or mathematics, they are preparing for different competitive exams like IIT, JEE or NEET, etc. Commerce students are preparing for this CA or CS, etc. But arts students, although they have potential, but they are not having any such target. They are having although a long-term target, कि we will be preparing for civil services or any other such government exam. But still they want to prepare since class 11th. So keeping in mind that point, the same topic which is there in NCERT book, fundamental rights. Today we are going to discuss in detail that can be slightly beyond the NCERT book. Fundamental rights are in the part 3 of our constitution. Now again, dealing with what is part 3? Part 3 and part 4. Part 3 of the constitution, which is also known as Magna Carta of India. Magna Carta is the Charter of Rights. First time in the history, British government issued this. I think in 1215 this thing was issued, and first time certain rights, liberty were given in the British Constitution. So the part 3 where the fundamental rights are given is also known as Magna Carta of Indian Constitution, India. The system is the Bill of Rights, which we have adopted from US. Bill of Rights. Bill of Rights we have adopted from US, it is given in the NCERT book also. Now these fundamental rights which are in the part 3 are justiciable rights. मतलब भाई अगर मेरे को ये राइट नहीं मिले मैं कोर्ट में जा सकता हूँ. पार्ट 4 में सिमिलर चीजें दे रखी है. Part 4 also the similar things are given, which we call directive principle of state. Directive principle of state policy, directive principles generally we call. So directive principles are in the part 4. If government is not fulfilling, not trying to complete those directive principles, you cannot approach court. आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब मेरा डायरेक्टिव प्रिंसिपल में तो ये क्या रखा है, आपने अभी तक क्यों नहीं दिया. तो पार्ट 4 के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते. पार्ट 3 में अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ तो यू कैन अप्रोच कोर्ट. कितने फंडामेंटल राइट्स है या कहां से है, तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो. इनिशियली 7 fundamental rights were there. Now only 6. कौन सा राइट गायब हुआ? That is आर्टिकल नंबर 31, राइट टू प्रॉपर्टी. ये था अमेंडमेंट नंबर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 1978. तो इस अमेंडमेंट से क्या हुआ? आर्टिकल 31 which was there, now it is article 300A. now it is a legal right, now it is no more a fundamental right. तो ये एक चेंज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में. पहले 7 राइट्स थे, नाउ देयर आर ओनली 6 राइट्स. और फंडामेंटल राइट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात आती है सब कौन से आर्टिकल से.
आर्टिकल नंबर 12, 13 और उसके बाद 14 से 32। आर्टिकल नंबर 12 एक्सप्लेन्स द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट क्या है? तो आर्टिकल नंबर 12 स्टेट को लेकर एक्सप्लेनेशन देता है। तो स्टेट क्या है? जनरली विथ वीक और या ये पार्लियामेंट के लिए हम जनरली स्टेट वर्ड कहते थे, ये पार्लियामेंट है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इसको भी स्टेट के उसमें मानते हैं। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायत है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसको भी स्टेट में माना गया। उसके अलावा कुछ बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट से एसोसिएटेड है, लाइक सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी, इन सबको भी हम स्टेट के उसमें कंसीडर करेंगे। तो स्टेट की एक बड़ी डेफिनेशन है जो आर्टिकल नंबर 12 हमें देता है। आर्टिकल नंबर 13, कोई भी ऐसा एक्ट, रूल, प्रोविजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या सरकार बनाती है जिसकी वजह से फंडामेंटल या कहीं पर किसी को नुकसान हो रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू के लिए वो एप्लीकेबल हो जाता है। रिव्यू ऑफ एनी लॉ। अब जो लॉ है तो वो क्या है? लॉ वो भी हो सकता है जो लेजिस्लेचर पास कर रहा है, लॉ वो भी हो सकता है जो रूल्स रेगुलेशन में आ रहा है, या टेम्परेरी कोई बनाया जैसे ऑर्डिनेंस है। अगर उन सबको जुडिशियल रिव्यू करने का पावर देता है। अब जुडिशियल रिव्यू करने के पावर दोनों के पास, सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास कैसे? आर्टिकल नंबर 32, आर्टिकल नंबर 32। हाई कोर्ट कैन ऑल्सो डू द सेम, कि कहीं ना कहीं अगर किसी लॉ की वजह से नुकसान हो रहा है तो उन लॉ को चेक करने का। आर्टिकल नंबर 226 ये हाई कोर्ट को पावर देता है कि अगर किसी वजह से भाई किसी लॉ से किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो ही कैन गो टू कोर्ट या कोर्ट उसे चेक कर सकता है। क्लियर? Now, one by one we will read different articles. Article number 14. फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नंबर 14 है। आर्टिकल नंबर 14 में दो चीजें कही गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। Equality before law and equal protection of laws. Now, both appear to be very similar things. Equality before law, कानून के सामने बराबर है, कानून सबकी बराबर रक्षा करेगा। तो मामला ऐसा लगता है जिससे दोनों बराबर है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। इजी तरीके से याद रखना है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव कैसे? फर्स्ट, जब हम बात कर रहे हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ की, तो ये सब पहले कहता है देयर विल नॉट बी एनी स्पेशल प्रिविलेज, किसी के लिए कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं होगा। ठीक है साहब, नो प्रिविलेज, मामला ही नो से चालू हो गया। सेकंड, नो वन इज अबव लॉ, नो वन इज अबव लॉ, तो ये भी बता देंगे, कोई कानून से कुछ नहीं है। इक्वल, like subjection of all people
टू द लॉ ऑफ लैंड कि भाई हम लोग सबके लिए कानून समान है। अब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में आ जाता है कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये पॉजिटिव बात कर रहा है, इक्वल ट्रीटमेंट। सेकंड, सिमिलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, दैट इज देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये सबके लिए बराबर कानून रहेगा, ठीक है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ को रूल ऑफ लॉ भी कहा जाता है, रूल ऑफ लॉ। ये एक ब्रिटिश ज्यूरिस्ट थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। शायद डाइसी एवी या जेवी डाइसी, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ का। तो वही एब्सेंस ऑफ आर्बिट्री पावर के साथ कोई भी मतलब मनचाहा कानून नहीं लगा सकता है, यानी लिमिट कर रहे हैं गवर्नमेंट को। दूसरा, इक्वल सब्जेक्शन ऑफ ऑल सिटीजन, तो ये रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ का इंग्लिश वर्जन नाम है, ब्रिटिश उसमें इसको माना गया है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गिवन इन आर्टिकल नंबर 14, क्लियर? Now next is there are certain limitation या exemption kind of thing from article 14 also। मतलब हर जने को राइट टू इक्वलिटी है, बट कुछ स्पेशल केसेस हैं। भारत के प्रेसिडेंट, भारत में जो गवर्नर हैं, दे आर नॉट आंसरेबल टू कोर्ट जब तक वो पोस्ट पे, दे आर नॉट आंसरेबल, मतलब डिसीजन के लिए तो बाद में भी, बट दे आर नॉट आंसरेबल। और जब तक वो उस पोजीशन पे हैं, दैट इज एज अ प्रेसिडेंट या गवर्नर, उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केसेस भी नहीं लगा सकते हैं। दे कैन नॉट, वैसे बड़े सम्मानित लोग होते हैं जनरली, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, जो समझदार, जिनकी बहुत ज्यादा सोसाइटी में रेस्पेक्ट है, तो वो लोग इस पोस्ट पे आते हैं तो उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ इनको स्पेशल प्रिविलेज मिले हुए हैं कि प्रेसिडेंट, गवर्नर, इनको। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 15। अच्छा, सारे आर्टिकल इंडियंस के लिए हैं, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, वो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे राइट्स हैं जो फॉरेनर्स हैं, जो इंडिया आते हैं, उनको भी राइट मिलते हैं। जैसे आर्टिकल नंबर जो हम पढ़ेंगे 15 है, 16 है, 19 है, 29, 30 है, ये तो शुद्ध रूप से भारतीयों के लिए है, ये बाहरी लोगों के लिए नहीं है। जो फॉरेनर्स इंडिया आते हैं उनके लिए भी कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल नंबर 14 उनके लिए भी है, 20, 21 उनके लिए भी एप्लीकेबल है, इवन 21A राइट टू एजुकेशन भी उनके लिए है। फिर 22 से लगा के 28 तक तो सारी है। हाँ, ये भाई ये दुश्मन देशों के लिए नहीं है, नॉट फॉर द एनिमी कंट्रीज, कि हमारी उनसे लड़ाई हो और वहां का कोई सिटीजन आ जाए, हम कहते भाई आप तो राइट टू एजुकेशन भी ले लो, तो इट विल नॉट बी लाइक दैट। बट जो सिटीजन नहीं है उनको भी कुछ राइट्स दिए हुए हैं। नाउ कमिंग टू द आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर 15 ये कहता है साहब, आप किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स, कि भैया आप इस जाति के, इस धर्म के, इसके, उसके, मतलब तो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, प्रोहिबिशन, बेसिकली इसके लिए लिखे थे, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये
भाई आप किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करें। अब इसमें भी कुछ अच्छी बात है, वी शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। या पब्लिक प्लेस वगैरह पे जब जाते हैं तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, बट इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कहते हैं है कि साहब ये तो कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं, उनमें जो सोशली एजुकेशनली वीकर सेक्शन है उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट दिया जा रहा है। महिलाओं को जो वीकर सेक्शन है उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, और ये गलत नहीं है। और इसमें एक दो चीजें जो रिसेंट वाली है वो कम से कम आपको याद रखनी चाहिए। 2005 में 93rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसमें ओबीसी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं ओबीसी, इनको रिजर्वेशन दिया गया था हायर एजुकेशन में, यानी आईआईटी और जो मेडिकल, इनमें इनको रिजर्वेशन दिया गया था 2005 के अंदर हायर एजुकेशन में। पहले जॉब में था, एजुकेशन में था। 93rd अमेंडमेंट के बाद ये करा गया। सिमिलरली 2019 में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इनको भी रिजर्वेशन दिया गया, और ये दिया गया था अमेंडमेंट नंबर 103 से। ये 93 103 मतलब 10 का डिफरेंस है, याद भी इजीली रह जाएगा। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इनको रिजर्वेशन दिया गया। तो वीकर सेक्शन को बेनिफिट देना, ये आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन नहीं है। अब आर्टिकल नंबर 16 पे आ जाते हैं, ये जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है। अब जॉब अपॉर्चुनिटीज या रिजर्वेशन एक बहस का अनएंडिंग बहस की जा सकती है। आप मेरे जो व्यूअर्स होंगे वो भी स्टूडेंट ही होंगे, और ना मैं इस काबिल हूं कि इस बहस में अपन कोई मुकाम तक पहुंचे, और ये अनएंडिंग बहस है। कुछ लोग इसका बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, कुछ इसका बहुत ज्यादा विरोध करेंगे, दोनों के अपने आर्ग्यूमेंट्स हैं। बट एज स्टूडेंट यू शुड नो रीजनेबल लॉजिक होना चाहिए। किसी चीज को आप फेवर करें या अगेंस्ट करें, ये भी एक डिबेट का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बस मैंने कह दिया ये कोई रीजन नहीं होता है। डिबेट ऐसी होनी चाहिए जिसमें कहीं ना कहीं लॉजिक हो। तो दैट ऑल्सो वी विल हैव अ वीडियो कि क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, बट जजमेंटल नहीं होनी चाहिए डिबेट। बस मैंने कह दिया तो ऐसा मतलब यही हो। डिबेट सब भी होती है क्योंकि आप एजुकेशन अभी आगे तैयारी करेंगे, जॉब के इंटरव्यूज में होंगे। अगर इस तरह का अगर कोई एक पर्टिकुलर आप पॉइंट लेके नहीं ये होना ही चाहिए, वो नहीं, उसका रीजन होने चाहिए क्यों। दैट शुड ऑलवेज बी व्हाई। क्योंकि फ्यूचर में जनरली जो ह्यूमैनिटीज लेते हैं उनका एम होता है कि गवर्नमेंट जॉब में जाना है, जहां पर हायर एजुकेशन में, जहां पर कहीं ना कहीं आपको इंटरव्यूज भी फेस करने होते हैं। इंटरव्यूज में एक बहुत जरूरी ये पॉइंट है, हर जो भी आप बोल रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे कोर्ट में वो जो होते हैं ना एडवोकेट, वकील, उनके पास फिक्स होता है क्योंकि ऐसा 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 ये पॉइंट है इसलिए ऐसा होना चाहिए। तो वैसे डिबेट होनी चाहिए, अननेसेसरी बस जिद नहीं करनी होती डिबेट। क्लियर? Now, Article number 16, equal opportunity of public employment. एम्प्लॉयमेंट में बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए ये आर्टिकल नंबर 16 है। अब ये वही बहस, रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन था 1979 में, when मुरारजी देसाई was प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया था, पॉपुलरली नोन एज मंडल कमीशन। मंडल कमीशन ने एक रिपोर्ट दी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ये
करीब करीब 52% पॉपुलेशन बनती है, जिसे ओबीसी कहा जाता है भाई, एससी एसटी के अलावा ये 52% पॉपुलेशन है। और कुछ 3700 से ज्यादा इसमें कास्ट ग्रुप्स आते हैं, मोर देन 3700 कास्ट इसमें आती है। और एक अच्छा खासा नंबर है, 52% पॉपुलेशन है, इनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। 52% पॉपुलेशन और 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जो करीब करीब 50% रिजर्वेशन हो जाता है अगर गवर्नमेंट जॉब में इसको दे दिया जाए तो। लेटर और बाद में बीपी सिंह जी ने इनको दिया था रिजर्वेशन, 79 में कमीशन बना, रिपोर्ट तो बड़ी जल्दी आ गई थी, बट रिजर्वेशन देने में कई साल लग गए। रिजर्वेशन दिया गया, उसके बाद भी बहस हुई, उसके बाद में एक रामनंदन कमेटी बनी जिसने एक कहा था क्रीमी लेयर विल नॉट बी गिवन रिजर्वेशन। क्रीमी लेयर मतलब अपर सेक्शन जो होगा ओबीसी में, उनको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बाद में इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बना 1993 में गवर्नमेंट के एक्ट से, और 102 अमेंडमेंट नंबर जो हुआ उसमें इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया गया। तो इस तरह से ओबीसी को रिजर्वेशन मिला, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिला, और सारे केसेस वगैरह के बाद ये डिसाइड हो गया कि रिजर्वेशन वायलेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स का, कि अगर किसी को सब इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कह रहे हैं और आप 50% सीटें रिजर्व कर रहे हैं तो ये वायलेशन नहीं है। इवन स्टेट लाइक तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, स्पेशल केस है, और उन्होंने इसको 9th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन केस वगैरह भी हुआ था, और 76th अमेंडमेंट हुआ था, ये 76th अमेंडमेंट 1994। 73rd अमेंडमेंट आपने 10th क्लास में पढ़ा है, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायतों के लिए था। तो ये 76th अमेंडमेंट 1994 में हुआ था, और इसमें इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया था, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। तो तमिलनाडु में 69% है। तो ऐसा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि कुछ जातियां जो पिछड़ी हुई मानी गई है सामाजिक तौर पर या एजुकेशनली, दे आर बीइंग गिवन रिजर्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 17 बैन अनटचेबिलिटी। कोई अनटचेबिलिटी सोशल और बड़ी, वाकई में बड़ी एक सोशल इविल है जिसको बैन करता है कि ये गलत है। किसी भी काइंड का जो अनटचेबिलिटी अगर वो करता है तो दैट इज वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 जो है वो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स है। अबॉलिशन ऑफ टाइटल जनरली जो नोबिलिटी वाले जो टाइटल्स हैं, जो 1947 से पहले जो वो प्रिंसली स्टेट्स में ये जो फ्यूडल टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं, महाराजा साहब और राय बहादुर और ये बड़े वाले जो टाइटल्स थे जो हेरिडिटी चले आ रहे थे, उन टाइटल्स को अबॉलिश करता है। एक्चुअली ब्रिटिश जो इंडिया में रूल था ब्रिटिशर्स का, दे एक्सेप्टेड दीज टाइटल्स। उन्होंने कहा सब अगर इनको ये टाइटल वहां के जो लोकल रूलर्स हैं उन्होंने दे रखा है तो दे सपोर्टेड इट, ये अच्छा ठीक है। बट आजादी के बाद इसको बैन कर दिया गया कि ये जो पुराने टाइटल्स हैं, हेरिडिटी टाइटल्स हैं, इनको बैन किया गया। कुछ टाइटल्स या नॉट एग्जैक्टली टाइटल्स, दे आर बीन अवार्डेड, नेशनल अवार्ड मिलते हैं। 1954 से इंडिया में नेशनल अवार्ड दिए जा रहे हैं, और जैसे भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, उनके लेके भी कई बार बहस चलती सर ये टाइटल नहीं है क्या। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि ये टाइटल नहीं है, ये उनका सम्मान है, बिकॉज दे हैव डन समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुड इन देयर फील्ड, इसलिए उनको सम्मान दिया जाता है। जनरली ये सफिक्स या प्रीफिक्स के तौर पे काम में नहीं लिए जाते हैं।
दीज आर द अवार्ड्स 1954 से चले आ रहे हैं, बीच में थोड़े टाइम के लिए जरूर बंद हो गए थे, 1977 से 1980 के बीच में ये 2-3 साल नहीं मिले थे, बाकी उसके बाद वापस कंटिन्यू है। तो ये अवार्ड्स हैं, दीज आर नॉट टाइटल्स। Any Indian citizen who is having any office, holding any office of profit, cannot accept any title from a foreign country unless president allows him. ना तो वो ऐसे गिफ्ट ले सकता है, ना ऐसे टाइटल, जब तक कि गवर्नमेंट प्रेसिडेंट से उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि मान लो पाकिस्तान सरकार किसी को सम्मान देना चाहे तो वो पहले इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेके देन ओनली ही कैन एक्सेप्ट दैट। क्लियर? सो आई होप तो पहला वाला जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल नंबर 14 to 18 मस्ट बी क्लियर टू यू।